ملک کے مختلف شہروں میں اے پی سی کے دوران جو فیسلٹیز ملتی ہیں، ہمیشہ اے پی سی اسلام آباد میں دامن قوم منعقد ہوتی ہیں یا کوئٹہ میں زرغون روڈ پر منعقد کی جاتی ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس بار ایک تاریخی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے دامن چلتن کے دامن میں منعقد نہ کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سیاسی پارٹیوں کا میں مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے آج آل پارٹیز کانفرنس جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی توسط سے بلائی گئی تھی ان میں شرکت کر کے جے یو آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری صاحب اور ان کے ہمراہ جے یو آئی کے صوبائی اور مرکزی قیادت، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اظہر خان اچکزئی صاحب، پی ٹی آئی کے صوبائی صدر داؤد شاہ صاحب، نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر سردار کمال خان بنگلوی صاحب، بی این پی عوامی کے مرکزی صدر میر اسرار اللہ زہری صاحب، جے ڈبلیو پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شمس کرد، پی ٹی ایم کے صوبائی صدر نور جان باچا صاحب، این ڈی ایم کے مرکزی سیکرٹری جنرل مزمل شاہ، جے آئی شیرانی کے اسماعیل بلیدی صاحب، ایچ ڈی پی کے وائس چیئرمین عزیز اللہ ہزارہ صاحب، انجمن تاجران کے رحیم کاکڑ صاحب، زمیندار ایکشن کمیٹی کے حاجی عزیز سربراہ، قبائلی قمائدین، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، جماعت اسلامی کے عبد المتین آخونزادہ صاحب، شکریہ کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوست و احباب کا، ان سیاسی پارٹیوں کے اکابرین کا سے معذرت بھی چاہوں گا کہ اس کٹھن حالات میں اور اس موقع پر اور اس جگہ پر آپ کو جو ہم نے مدعو کیا وہ سہولتیں شاید ہم آپ کو پرووائڈ نہ کر سکیں جو اسلام آباد یا کوئٹہ یا ملک کے مختلف شہروں میں اے پی سی کے دوران جو فیسلٹیز ملتی ہیں. ہمیشہ اے پی سی اسلام آباد میں دامن قوم منعقد ہوتی ہیں یا کوئٹہ میں زرغون روڈ پر منعقد کی جاتی ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس بار ایک تاریخی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے دامن چلتن کے دامن میں منعقد نہ کی جائے، نہ کہ صرف ہم اس میں بلوچستان کے حالات کو بغور اس پر جائزہ لیں، بلکہ ان علاقوں میں بسنے والے اور روزمرہ کی جو ہم لوگ یہاں کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان حالات کو بھی ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے. ایجنڈا میں آپ تمام حاضرین مجلس سیاسی پارٹیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بلوچستان میں ریاستی جبر اور امن امان کی صورتحال، میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی شعور رکھنے والا، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا کارکن، اس کی قیادت بلوچستان کے ساتھ ریاستی جبر جو روز اول سے برتا جا رہا ہے یا جو سلوک برتا جا رہا ہے اس سے ناواقف نہیں ہوں گے. اس میں جو فوجی آپریشن کیے گئے ہیں گزشتہ ادوار سے 1947 سے جب یہ ملک محرز وجود میں آیا، بلوچستان کے لوگوں کو
तरक्याती मद के बदले यहाँ पर फौजी ऑपरेशन दिए गए। 5 मिलिट्री ऑपरेशन, 5वां जो जनरल मुशर्रफ के दौर से जारी है, अभी तक उन्होंने वो स्टार्ट किया गया था, अभी तक जारी है। उसके जो इफेक्ट्स हैं, उसके असरात हैं, वो न कि सिर्फ हमारे बलूचिस्तान के सियासी माहौल पर उन्होंने अपने असर डाले हैं, हमारी माशी ज़िंदगियों पर बहुत से उसके असरात पड़े, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ, हम यहाँ के लोगों के जो वो ट्राइबल सिस्टम है उस पर भी बहुत से उनके असरात पड़े हुए हैं। लापता अफराद का जो मसला है वो भी उस रियासती जबर और उन ऑपरेशनों का एक हिस्सा है। गिरफ्तारियाँ, मार्शल लॉ के दौर में गिरफ्तारियाँ होती रही, जमहूरी दौर जो गुजरे हैं वहाँ पर भी यहाँ पर गिरफ्तारियाँ होती रही हैं। लेकिन रिसेंटली जो अभी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक ज़माना था जब मिसिंग पर्सन्स, नौजवान, बुजुर्ग, सियासी कारकुन, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, दानिश्वर, अदीब, उनको उठाया जाता था। लेकिन हमारी खामोशी ने उनकी उस जुर्रत में जो है ना, रियासत की उस इक़दाम में और तेज़ी लाए। वो जो कभी महीने में या साल में चंद लोग गायब होते थे, अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ऐसा इलाका नहीं बचता, कोई ज़िला नहीं बचता जहाँ से लोगों को जबरन गायब नहीं किया जाता। एमपीओ के तहत एक एमपीओ मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में था, जिसको नीम मार्शल लॉ कहा जाता था। लेकिन इस वक्त तो लोग कहते हैं कि 2024 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। अब इसमें फ्री कितने, फेयर कितने हुए हैं, आप तमाम जो सियासी पार्टी हैं उनसे उनके मुतासिर होकर हमेशा अपनी आवाज़ और उस इलेक्शन के नताइज के ख़िलाफ़ अपनी जो है मौक़िफ़ बयान किया है। लेकिन ये जिसको जमहूरी हुकूमत कहा जाता है, उसके दौरान ख़वातीन को एमपीओ के तहत जो है 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है। उस पर भी मैं आप हजरात की जो है राय मानना चाहूँगा। और इसके साथ साथ तहरीर, तकरीर और एहतजाज पर भी पाबंदी। 4th शेड्यूल में जिस किसी का जो डिप्टी कमिश्नर हो, किसी ने अगर कोई तकरीर कर दी, किसी ने कोई एहतजाज कर लिया, किसी ने सोशल मीडिया में कोई एक वीडियो जारी कर दी, या कोई ट्विटर पर या x.com पर जो उसने कोई कमिट कर लिया, उसका नाम भी 4th शेड्यूल में आ जाता है। तो बदतरीन मार्शल लॉ जो इस मुल्क में गुजरे हैं, जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ गुजरा, याया खान का मार्शल लॉ गुजरा, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ गुजरा, गुलाम अहमद का जो मार्शल लॉ था वो कुछ अरसे था भी, जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ। अब वो तो उनको तो कहा जाएगा कि जो फौजी मार्शल लॉ थे, लेकिन ये जो आज दिन के हैं इनको मैं जमहूरी मार्शल लॉ कहूँगा। वो अगर बदमाशों के फौजी बदमाशों के मार्शल लॉ थे, तो ये जमहूरी शरीफों के मार्शल लॉ हैं। और इन्हीं मामलात को अगर आप देखें, उन पर गौर करें, तो इनका लिंक जाके इनके जो रास्ते हैं आपको आके बलूचिस्तान के वसाइल और बलूचिस्तान के साहिल पर मिलेंगे। चाहे वो फॉर्म 47 के इलेक्शन हो, चाहे बलूचिस्तान में जो जबर और अमन अमान का मसला है, सिक्योरिटी का जो मसला है, इन तमाम के जो रास्ते हैं, इनकी जो पगडंडियाँ हैं, वो आके बलूचिस्तान के साहिल, बलूचिस्तान के वसाइल पर जो एंड होते हैं। और वो कहते हैं ना इंग्लिश में, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, मतलब तमाम रास्ते जो है ना वो रोम की तरफ जाते हैं। ये तमाम जो जबर है,
सियासी तकारीर पर, एहतजाज पर पाबंदी, लोगों को गायब करना, पाबंद सलासल करना, गिरफ्तारियाँ, फोर्थ शेड्यूल, तहरीर और तकरीर और एहतजाज पर पाबंदियाँ, ये तमाम की तमाम रास्ते जो है ना आपको ले जाते हैं उस नौआबादियाती निज़ाम की तरफ जिसकी बुनियाद 1947 में पाकिस्तान बनने के नाम पर रखी गई थी। और वो मैं वहदत मुस्लिमीन का जो वफ्द आज की इस APC में शरीक हुए हैं, अल्लामा अली हसनैन हसनी, अल्लामा वल्दियत हुसैन को जो है पार्टी की तरफ से आज की इस APC में खुश आमदेद करता हूँ। अब इसमें आप सुई गैस के जो मुआहदात, सुई की जो लुटमार थी 1960-62 की दहाई में, सुई गैस यहाँ से डिस्कवरी तो हुई थी 1950s में, लेकिन 1962 में जो बाकायदा उस पर काम शुरू हुआ और वो गैस मुल्क के कोनों कोनों तक पहुँच चुकी। PPL के साथ जो मुआहदात हुए हैं, रेकोडेक का मुआहदा जिसकी हमने मुखालफत भी की और असेंबली में उस पर हमने एहतजाज भी किया। बलूचिस्तान में पानी का हिस्सा, क्योंकि मैं इसको एक मामूली सी ब्रीफिंग देकर फिर मुकम्मल इस पर जो वर्कआउट हमने किया है कि इसके जो हमें खदशात से जो खतरात हैं और आने वाले दिनों में जो है ना हम अहले बलूचिस्तान, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ बैठी हैं, चाहे उनका ताल्लुक उनकी पार्टी वफाक से हो, लेकिन यहाँ पे जो नुमाइंदगी कर रही है उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और जो आज की जो हालात हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के मामलात हों, चाहे ख़वातीन की जो है गिरफ्तारी हैं, ये हम सब का मसला है। हम चाहे जितने भी पॉलिटिकल हों, चाहे हम जितने भी सियासी हों, चाहे हमारा ताल्लुक किसी ट्रेड यूनियन से है, ताजरान से है, सियासी पार्टियों से है, लेकिन हम उन वाक़यात और उन मसाइल से अपने आप को जो है दूर नहीं कर सकते, नहीं उनको जो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। बलूचिस्तान के पानी का मसला, अब एक आपने सुना होगा कि चोलिस्तान के लिए जो है 5 या 6 कैनालें निकाली जा रही हैं। लोग ये समझते हैं कि इससे नुकसान सिर्फ सिंध को होगा, लेकिन ये भी देखा जाए कि सिंध को जो पानी मिलता था खीरथर और पटफीडर कैनाल की तरफ से, जब दरिया सिंध खुश्क हो जाएगा तो पटफीडर और खीरथर कैनाल की क्या हालत होगी। और इसी तरह गुज़िश्ता कई दिनों से हब डैम का तो आपने नाम सुना होगा कि जिससे 95% उसका जो कैचमेंट एरिया है या पॉन्ड एरिया जो है वो बलूचिस्तान से है, लेकिन बलूचिस्तान को उससे पानी मिलता था 35%। उस 35% का भी 10% आपका जाता था हमदर्द यूनिवर्सिटी और उस इलाके में जो सिंध में कराची का इलाका है उसके लिए, आबाशी के लिए, लेकिन 75% उसका पानी कराची के लिए जाता था। अगर 2-3 साल अगर बारिशें नहीं होती तो हब डैम भी खुश्क हो जाता, तो कराची के लिए भी पानी भेजना मुश्किल हो जाता था और हब साकरान के इलाके में जो एग्रीकल्चर हो रही है, ज़मींदारियाँ हो रही हैं, वो भी खुश होती। अब एक नया कैनाल वहाँ से सिंध हुकूमत की तवज्जो से निकाला गया है जो कराची के लिए पानी ले जाएगा। तो उस पर भी हमने एक ब्रीफिंग बनाई है, उस पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान इन तमाम अपने जराइम को आईनी शक्ल देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई और उस पर उस आईनी तरमीम को और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया कि डाका भी डालेंगे वो, लूट मार भी करेंगे वो, लेकिन उनके उन तमाम जुराइम की हिफाजत या उन पर पर्दा डालने के लिए जो कौमी सलामती की तवज्जो से इस मुल्क की फौज और इसके खुफिया इदारे जो काम करेंगे।
تمام حاضرین جو سیاسی پارٹیوں کے جو نمائندگی کریں گے ان سے گزارش ہوگی کہ ان اسپیسیفک پوائنٹس پر آپ اپنی رائے دیں، اور لاسٹ میں ہم اس میں ایک ڈکلیریشن وہ کریں گے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لک پاس ڈکلیریشن کا نام دیا جائے. تمام ساتھیوں کے صلاح مشورے کے بعد پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. لیکن تمام ان مسئلوں سے جو ہے میں سمجھتا ہوں جو پرائرٹی پہ ہماری ہونی چاہیے وہ ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز پر جو پابندی لگائی گئی ہے، بلوچستان کے لوگ اس پابندی کے جو کافی عرصے سے شکار تھے. کسی نہ کسی انداز میں جو ہے نا بلوچستان کے پولیٹیکل آواز کو جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی. لوگوں کو جبراً اٹھایا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا. اب یہ ناسور پورے ملک میں جا کے پھیل گیا ہے. تو سٹارٹ میرے خیال میں ہم اگر اس کا بلوچستان سے لیں اور پھر اس کو وسیع تر کرتے ہوئے ہم پاکستان تک پہنچائیں، لیکن ابتدا جو ہم پرائرٹی جو بیس ہوگا وہ ہوگا ان خواتین کی گرفتاری اور ان کی رہائی. میں پھر ایک بار تمام حاضرین مجلس، تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین جنہوں نے آج کے اس اے پی سی میں شرکت کی، میں ان کو نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ شکریہ بھی ادا کروں گا ان کا. بڑی نوازش.